Very good morning to all the students. Now we are starting the new type of the question related to the second chapter of part A, volume 1, that is in fundamental of partnership firm. And you know very well, in today's video we discussed a lots of the different type of the practical problem related to the fundamental of partnership firm, which are related to the preparer of profit and loss appropriation account, which are related to the distribution of profit among the partners after the preparation of the profit PL appropriation account, portions related to adjustment in closed account. So now let's start the calculation of the average period related to the interest on drawing. So it is a very short topic. How we will calculate the interest on drawing? You know very well the format or formula of calculating the interest on drawing will be the drawing, amount of drawing into rate upon 100 into average period upon 12. Average period upon 12. The question is that how we will find out the average period? You know very well the formula for calculating the average period is period after first drawing plus period after last drawing, the whole divided by 2. यानी जितना पीरियड फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद बचा प्लस जितना पीरियड लास्ट ड्राइंग करने के बाद बचा उसको आप उसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं तो आपका निकल जाता है एवरेज पीरियड। इससे रिलेटेड जो टेबल्स हैं वो भी मैंने आपको दिए हैं। अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं, टाइम सेव करना चाहते हैं तो यू विल लर्न द एवरेज पीरियड। ओके, सो प्लीज नोट डाउन एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो सेशन इज क्वेश्चन नंबर 83, which are related to the preparation of PL appropriation account and distribution of profit. So the first question of today's session is question number 83, that is an A, B and C were partners in the firms having capital of 1 lakh, 1 lakh and 2 lakh respectively. According to the partnership deed, the partners were entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum. यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 6%. A being the working partner was also entitled to a salary of 5,000 per month. A को सैलरी मिलेगा 5,000 रुपये महीना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इस प्रोसेस से होगा, प्रॉफिट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसके लिए स्टेप दिया हुआ है। फर्स्ट 40,000 2:3:5 में, नेक्स्ट 80,000 कैपिटल के प्रोपोर्शन में और रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। The firm made a profit of rupees 2,70,000 for the year ended 31st March 2018 before charging any above item. कोई भी आइटम चार्ज करने से पहले the profit will be 2,70,000. तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? PL appropriation account. What is the format of PL appropriation account? Particulars amount. सबसे पहले क्या लिखेंगे? By net profit. What is the amount of profit? Is 2,70,000. और इस प्रॉफिट में आपको क्या क्या देना है? पहले देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को, बी को, सी को। ए की कैपिटल कितनी है? 1 लाख, बी की भी 1 लाख, सी की 2 लाख। कितना परसेंट देना है? 6%। सो 1 लाख का 6% इज 6,000। बी का 1 लाख का 6% 6,000। सी का 2 लाख का 6% इज 12,000। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 24,000 इज अ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एज वेल एज ए को हमें सैलरी देना है, तो 2A सैलरी। ए की सैलरी कितना कह रहा है? 5,000 पर मंथ। सो फॉर 12 मंथ्स इट विल बी 60,000। और फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? ए, बी और सी में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तीनों में क्या करेंगे? प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है?
ये 270 है, इधर भी कितना आना चाहिए 270। सो जो बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल में ए बी एंड सी। तो पहले हम टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं जो पार्टनर्स को मिलेगा। कैसे, कितना मिलेगा, 270 में से कितना एक्सपेंस हो गया 84, तो बचा कितना 6 एंड 8, 1,86,000 बचा। अब इस 1,80,000 को क्या करेंगे, ए बी सी तीनों में बांटेंगे एज पर द गिवन प्रोविजन, एज पर द गिवन प्रोसीजर। कैसे बांटेंगे, उसके लिए एक छोटा सा रफ वर्क बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। कितने पार्टनर हैं, 3, ए बी और सी। सबसे पहले टोटल प्रॉफिट कितनी है, इसका हेडिंग रख देना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख, कितना आया था 1,86,000। हाँ, 1,86,000 को हम ए बी सी में बांटेंगे। कैसे बांटना है, फर्स्ट 40,000, जो फर्स्ट 40,000 है उसे किस रेशियो में बांटना है, 2:3:5। तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 8 10, 10 4 8,000, 12,000, 20,000। फर्स्ट 40,000 को इस रेशियो में बांटना है। फिर क्या बोलना है, नेक्स्ट 80,000 को किस रेशियो में बांटना है, कैपिटल का प्रोपोर्शन। और कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या है, ए का 1 लाख है, बी का 1 लाख है और सी का 2 लाख है, यही कह रहा है। तो कैपिटल प्रोपोर्शन क्या बना, 1:1:2। सो इट विल बी 4 4 2 8, 20,000, 20,000, 40,000। अब लास्ट बैलेंस, बैलेंस जितना बचा, कितना बैलेंस बचा देख लो, 186 हमें बांटना था, जिसमें से 40 और 80 बांट दिया। 186 हमें बांटना था, जिसमें से हमने 40 और 80 यानी मिलाकर कितना बांट दिया, 120। बचा कितना, 66,000। और इस 66,000 को कैसे बांटना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको बांटना है इक्वली। कैसे बांटना है, इक्वली मतलब 1:1:1। तो ए को कितना मिलेगा, 20,000, बी को मिलेगा 20,000, सी को मिलेगा 30,000। यानी हमने पूरा 1,86,000 रुपए 1,86,000 क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ सॉरी, इट विल बी 22,000। इट इज द 66,000। जब 22 22, अब ऐड कर लेते हैं, 22 8 30 30 20 50, 22 2 20 22 20 कितना हुआ, 42 42 एंड 12 54, 40 20 60 82। चेक द आंसर, ए को 50,000, बी को 54, सी को 82। यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। यहाँ आप लिख देंगे ए के सामने इतना, बी के सामने इतना, सी के सामने। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता। So now, after discussing the various questions related to the first chapter, that is an accounting for partnership firm fundamental, now we are moving to the question number 89. The question number 89 is related to the computation of interest on drawing. Computation of interest on drawing. So let's discuss how we will calculate the interest on drawing. Basically, you know very well there are two methods to find out the interest on drawing. First is a simple method and second is a product method. और दोनों मेथड की अपनी अपनी रिलेवेंसी है, अपना अपना तरीका है कि हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द केसेस, जिसमें सबसे पहला केस होता है, यू नो वेरी वेल, व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग and the period of drawing are not equal, and number second, when amount of drawing and the period of drawing are
बीइंग इक्वल। मतलब ये है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे हम जो ड्राइंग कर रहे हैं, अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, वो इक्वल नहीं होता। यानी हम कभी 1 जनवरी को, कभी 15 फरवरी को, कभी 30 मार्च को, कभी अब मार्च के बाद आएगा अप्रैल में हम लोग 15 अप्रैल को, यानी कि द डेट ऑफ द ड्राइंग इज नॉट फिक्स्ड एज वेल एज द अमाउंट ऑफ द ड्राइंग इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। In January we withdraw 2000 rupees, in February we withdraw the 3000 rupees. So in this situation we follow the simple of product method, whereas in the other situation when the rate of drawing as well as the period of drawing as well as the amount which are withdrawn from the business as a drawing will be fixed. In this situation we follow the different specific method like an average period, which is known as the interest on monthly drawing, interest on quarterly drawing, interest on half yearly drawing. So such kind of the method will be followed. तो उसी बेस पे based है क्वेश्चन नंबर 89. Calculate the interest on drawing of Tarun at the rate of 8% per annum for the year ended 31st March 2018. In each of the following alternative cases, the case A will be, case A क्या कह रहा है? Case A कह रहा है If he withdrawing during the year with 60,000, पूरे साल भर में उसने कितना निकाला? 60,000। तो सिचुएशन में 60,000 एंड द रेट ऑफ द ड्राइंग विल बी 8%। और जब कोई मंथ्स गिवन ना हो तो हम एवरेज पीरियड हमेशा क्या लेके चलते हैं? 6 2 12 2 4 18, इट विल बी 2400। केस बी भी, इफ ही विड्रॉ 5,000 per month in the beginning, सो 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग का मतलब है शुरुआत में पैसा निकालना। सो उसके लिए एवरेज पीरियड आपको याद है 6.5/12 एंड कितना निकालना है? 5,000 पर मंथ। तो 5,000 इंटू 12, 60,000 इज द एनुअल ड्राइंग। सो फॉर्मूला विल बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 60,000 इंटू 8% into 6.5/12, 4 3s are 12, 4 2s are 8, 0 से 0 कट गया, 3 2s are, so it will be 20 20 40। ओके, सो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे सो बी का आंसर आएगा आपका 232600। नाउ केस सी। Case C will be here, if you withdraw 5,000 per month at the end of every month, हर महीने के एंड में अगर पैसा निकालेंगे, अगर हर महीने के हम एंड में पैसा निकालेंगे तो इस सिचुएशन में द एवरेज पीरियड विल बी 5.5। तो 5,000 पर मंथ, वही सेम 60,000, बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 60,000 मल्टीप्लाई बाई 8% इंटू 6, एंड ऑफ द मंथ है तो 5.5/12। तब इसको सॉल्व करेंगे सी को तो आंसर विल बी आएगा 2,200 रुपीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर डी। इफ यू विड्रॉ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, if he withdraw 5,000 during the year, 5,000 per month during the year, उसने पूरे साल भर में 5,000 हर महीने निकाला, तो इसका मतलब उसने 60,000 तो निकाला लेकिन ड्यूरिंग द ईयर निकाला। ये क्लियर नहीं है कि बिगनिंग में निकाला, मिड में निकाला कि एंड में निकाला। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? एवरेज पीरियड हमेशा क्या लेंगे? 6 लेंगे। ओके, 6 2s are 12, 8 0 0, it will be 2,400। So these are the result of the computation of interest on drawing of question number 89। इसी के साथ साथ एक दिया है केस ई, जिसमें डिफरेंट डेट्स गिवन है और साथ ही साथ डिफरेंट डेट के साथ साथ अमाउंट भी गिवन है। जैसे जून 1 में अगर हम लोग बात करें, जून 1 है, अगस्त 31 है, उसके बाद आपका आता है नवंबर 1 है और दिसंबर 31 है, फरवरी 1 है। ओके,
और अगर हम लोग बात करें अमाउंट की तो जून 1 की अमाउंट है 10,000, अगस्त की अमाउंट है, अगस्त की हमारी अमाउंट है कितनी, अगस्त की अमाउंट है हमारी इट विल बी 12,000, 16,000, 12,000, 16,000. Next will be 13,000, 9,000. So पहले we have to calculate the period. Period in which month? कितने मंथ्स, क्योंकि 31 जून से अगर हम लोग काउंट करेंगे कितने दिन, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. सो इट विल बी 10 मंथ्स. इसी की तरह अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ. दिसंबर खत्म हो गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स, एंड फरवरी, मार्च, 2 मंथ्स. So you have a two option. Either you will select the यहाँ प्रोडक्ट कैलकुलेट करें. प्रोडक्ट इट विल बी 1 lakh, इट विल बी 84,000, इट विल बी 80,000, इट विल बी 39,000, इट विल बी 18,000. फिर आप इसका टोटल कर लेंगे. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12. सो ये जो टोटल आएगा प्रोडक्ट का उसे आप ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट से. रेट जो कितना दिया है आपका क्वेश्चंस में, रेट जो है ये दिया है 8% और 1/12 कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट मेथड से आपने क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया. बात सवाल ये है कि यहाँ प्रोडक्ट मेथड क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ ड्राइंग एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल नहीं है, सब अनइक्वल है. ओके, सो प्लीज नोट डाउन, इसको सॉल्व कर लीजिएगा. So let's we discuss the question number 103, and the question number 103 says that E, F, G are partners in the ratio of 3:2:1. After division of the profit for the year ended 31st March 2021, their capital E 2,95,000, F 3,30,000, G 3,35,000. सो क्वेश्चन में कह रहा है कि ई एफ जी 3 पार्टनर्स थे, ई एफ एंड जी. उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 3:2:1. और साथ ही साथ कह रहा है कि जो उसकी कैपिटल है, विच टाइप ऑफ द कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर मतलब सब कुछ करने के बाद, लिखा है ना, आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 देयर कैपिटल, मतलब ये कैसी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने प्रॉफिट को क्या कर लिया है, एडजस्ट कर दिया. व्हाट इज द अमाउंट, 2,95,000, फॉर एफ 3,30,000 एंड फॉर जी 3,35,000. क्वेश्चन में कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ 40,000 ईच, मतलब तीनों ने ड्रॉइंग किया है 40,000 ईच, मतलब ई ने भी 40,000, एफ ने भी 40,000 और जी ने भी 40,000. तीनों ने कितना कितना विड्रॉ किया है, 40,000 रुपीज विड्रॉ किया है. अब गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है, the profit for the year was 180. The partnership deed provide that interest on capital will be allowed at the rate of 12% per annum. While preparing the final account, interest on partners capital was not allowed. मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 12% से. पार्टनरशिप डीड कह रहा है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था,
12%, लेकिन जब हमने अकाउंट बनाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। सो व्हाट इज राइट, सही क्या था, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% से। गलती क्या हुई, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, यही हमसे गलती है, दिया ही नहीं। तो उस गलती को हम रेक्टिफाई करेंगे। क्या करेंगे, रेक्टिफाई। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट या पास्ट एडजस्टमेंट। अब सवाल उठता है हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो रेक्टिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, इससे पहले भी हम लोगों ने किया है। एक टेबल बनाएंगे, तीनों का हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। कितने परसेंट से देंगे, 12% से। तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और टोटलिटी में तीनों के लिए क्या होगा, ये लॉस। फिर इस लॉस को लोग क्या करेंगे, आपस में बियर करेंगे। किस रेशियो में, 3:2:1। लेकिन सर इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि जो कैपिटल है ना वो क्लोजिंग है। कैसी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। और जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, वो किस पे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। कहां से, क्लोजिंग कैपिटल से निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। और ये 11th में आपने पढ़ा है कैसे हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते हैं। क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट को माइनस करते हैं, लॉस को प्लस करते हैं, एडिशनल को माइनस करते हैं, ड्राइंग को प्लस करते हैं। ये करेंगे तब जाकर आपका क्या निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। सो पहला काम हमारा क्या है, ओपनिंग कैपिटल निकालना। कैसे निकलेगा, पहले हम लोग प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, माइनस, और लॉस को क्या कर देते हैं, प्लस। एडिशनल कैपिटल है नहीं, ड्राइंग, ड्राइंग को क्या करना है, प्लस। तो ये जो ड्राइंग है ना, तीनों में क्या करेंगे, प्लस। ई में प्लस, एफ में प्लस और जी में प्लस। तीनों में क्या होगा, प्लस। और प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में कि लॉस दिया है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है कितना, 180। तो प्रॉफिट को क्या करना है, माइनस। कितना है, 180। उसे तीनों में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, ओके। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 180 है, उसको किस रेशियो बांटेंगे, EFG में 3 to 5 and 6। 6 से डिवाइड करो, 30,000 माइनस 60,000 माइनस 90,000 माइनस। अब 2,95,000 में 40 ऐड करना है, 90 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल 2,45,000। इसका ई का, एफ का आ जाएगा 3,10,000। कैलकुलेट करना, उतना ही आएगा। जी का आएगा 3,45,000। अभी तक हमने पहला स्टेप क्लियर कर लिया, ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। क्यों निकालना जरूरी था, क्योंकि बिना ओपनिंग कैपिटल के हम क्या नहीं निकाल पाते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट नहीं कर पाते। अब ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट निकालना है, 12%। किसका 12%, इसका और इसका। सो पहले निकालेंगे 2,45,000 का 12%, कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे। सो 2,45,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 29,400। किसको मिलेगा, सर ई को मिलेगा। एफ की कैपिटल कितनी है, 310 का 12% कितना आया, 37,000। जी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 3,45,000, 12% कितना आया, 41,400। ये तीनों को मिल रहा है, तीनों को क्या है, प्लस हो रहा है। तो एज अ होल अगर आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो फर्म के लिए कितना लॉस हो गया, 1,08,000 का सब लॉस हो गया। फिर इस 1,08,000 को हम क्या करेंगे, उनके PSR में क्या करेंगे, बांट देंगे, क्योंकि लॉस है।
3:2:1 में बांट देंगे तो कितना आएगा, ए का जी का आएगा 18,000, 36,000, 54,000, ये लॉस है। अब फाइनल निकाल लो, इसको सॉल्व करेंगे तो जी का आ रहा होगा 23,400, वो भी किसमें, प्लस में। एफ का आ रहा होगा 1200 प्लस में, जबकि ई का माइनस में आएगा 24,600। तो आपको मैंने बताया जब फाइनल आंसर माइनस में आता है तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट, प्लस में आता है तो क्या होता है, क्रेडिट। नोट डाउन कर लो इतना।